Hi everyone, I'm Aryan. So thank you for 58 subs. We are way more close to 75 sub, and that's a very good thing. We are achieving our targets, and yeah, last video really boomed, which I cheesy ऐसी हूँ मैं जो cheesy ऐसी बनाता हूँ तो yeah it will actually. So to the video, your wedding gold is connected to a war in Iran. So if you all recall, on May 10th, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, the Prime Minister of India, stood before a crowd in Hyderabad and asked 1.4 billion people to stop buying gold, to stop traveling to world, to stop driving to work, to use less cooking oil, and the internet predictably went insane. Half of the comments were like Modi ji is destroying the economy. I say Modi ji, but they were like Modi. They don't use G on the internet. Yeah, but and other half was Jai Hind. Whatever he says, that's actually right. But here's my question, which I don't think anybody is asking. If you are, then fist bump bhai. Why does the government ever need to ask its citizens to sacrifice? And more importantly, what does it actually reveal about how power, money, and human psychology actually works? Because I promise this is not just about gold. So, let me give you the facts first. And I already told you मैं इधर क्यों देखता हूँ क्योंकि मेरा OBS खुला हुआ है. I have to recheck वो लैग ना हो कहीं अटक नहीं रहा हो. तो जस्ट इन केस इफ यू आर क्यूरियस मैं बार बार इधर इधर क्यों देख रहा हूँ. सो लेट्स डू द ट्रांजिशन अगेन. मैंने लास्ट वीडियो में ट्रांजिशन करी. आई गेस मेरी वन ऑफ द मोस्ट कमेंटेड वीडियो थी. बट एवरीबडी वॉज जेन्युइनली आस्किंग और टेलिंग मी कि ये से था. बट nobody actually you know talked about or said anything about my transition. It was very good, man. If you want to see, just check it out my last video. मैं नहीं बता रहा टाइम स्टैम्प तुम्हें. वीडियो भी देख लो. दैट्स अ गुड वीडियो. सो हुई. आई होप हो गई हो. मैं एक ही ट्राई लेता हूँ. मैं नहीं बार बार करता. बाकी एडिट में हुआ हुआ नहीं हुई तो एडिट से हटा दूंगा. Let me give you the facts first, because you actually need them. So you know na, since 26 Feb 2026, United States and Israel are on the war with Iran. India didn't fire a single bullet, but India is still bleeding economically. Here's why. जो ईरान है ना, it basically controls the choke point which is called State of Hormuz. State of Hormuz. मतलब I will just put वर्ल्ड का 20% जो ऑयल है ना इट पासिस थ्रू इट. अब अगर वो रीजन पे कुछ होगा, अगर वो बंद करेगा, लाइक बेसिकली इफ दैट रीजन इज अफेक्टेड, द ग्लोबल प्राइस ऑफ ऑयल विल इंक्रीज. एंड इंडिया, जो हमारा इंडिया है, इट्स द थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द ऑयल ऑन द प्लेनेट आफ्टर यूएस एंड चाइना. लास्ट ईयर इंडिया स्पेंड 1.23 बिलियन डॉलर्स on just importing the crude oil. So every time a missile is fired at the West Asia, I don't know West इधर है उधर है तुम देख लो, a few more dollars silently drain out of India's foreign exchange reserves. जो इंडिया के forex reserves थे ना, it dropped from 728 billion dollars in late February to 690 billion dollars by May. That's nearly 38 billion dollar vanished in just 2 months. So अब यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है. एवरीबडी इज आस्किंग इज मोदी जी राइट और मोदी जी रॉन्ग. सबके दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा है. ब्रो, दैट्स द रॉन्ग क्वेश्चन. राइट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड व्हाई डज इट मेक गवर्नमेंट पैनिक. अब ऐसे सोचो, जो इंडियन हाउस होल्ड होते हैं, एवरीवन दिस हाउस होल्ड earns money through exports, services, remittances, and every month it spends money on oil, gold, fertilizers, foreign travel. So take it as कि foreign exchange reserves है ना, वो एक सेविंग अकाउंट है हमारा. नाउ थोड़ा अलग हो सकता है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. जो इकोनॉमिस्ट है ना, दे हैव अ कंसेप्ट कॉल्ड करंट अकाउंट डेफिसिट.
तुमने शायद सुना हो, जो आईएमएफ है ना, दे प्रोजेक्टेड इंडिया स्कैड एट $84 billion फॉर 2026. A negative current account means basically the country is spending more than it earns. Like just take it as example, जो एक बिजनेस है वो खर्च ज्यादा रहा है और कमा कम रहा है. लाइक दे आर अर्निंग 10,000 बट दे आर स्पेंडिंग 50,000, तो ऑब्वियसली 40,000 तो नेगेटिव ही है ना उसका. एंड दैट्स फाइन अप टू अ पॉइंट. एवरी ग्रोइंग इकोनॉमी डज दिस. बट अब अगर वॉर होती है, जो तुम्हारा जो सबसे बड़ा एक्सपेंस है ऑयल, उसको सडनली बहुत एक्सपेंसिव बना देता है, वाइल तुम्हारा सेविंग अकाउंट ऑलरेडी डिप्लीट हो रहा है. जैसे तुमने नोटिस करा होगा अपने घर में कि तुम्हारा दिमाग फट रहा होता है. जैसे बेसिकली स्कूल की फीस भरनी है तुम्हारे पापा का, तुम कर रहे हो, उधर से आ जाती है स्कूल की पिकनिक भी जानी है. यहाँ स्कूल के फीस के पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे, वहाँ पे स्कूल की पिकनिक आ गई. तो मतलब ये थोड़ा ज़्यादा एग्जाम्पल दिया है, इसको बिल्कुल एकदम से वो मत करना कि सेम टू सेम सिचुएशन है, ऐसा नहीं है. बस जस्ट यू टू शो यू कि हाँ ये कैसे कनेक्ट हो रहा है. कि यही फील होता है कि व्हेन यू ऑलरेडी इन अ वो डेफिसिट में होते हो, तुम एक नेगेटिव अकाउंट में होते हो, एंड स्टिल एक और नया एक्सपेंस आ जाता है. बेसिकली लाइक घर का राशन भरना है और उसके पैसे नहीं हो रहे, एंड देन सडनली स्कूल की फीस आ गई. दैट काइंड ऑफ शिट. एंड हियर्स अ philosophical layer nobody talks about. A nation's foreign exchange is not just money, it is confidence. Because तुमने notice when reserves fall, currency weakens. When currency weakens, imports cost more. When imports cost more, inflation rises. अब जब inflation rise होती है, फिर जो सबसे गरीब लोग हैं, जो अपना 50-60% इनकम का सिर्फ खाने पे लगाते हैं, उनको सबसे ज्यादा चोट लगती है इससे. When inflation rises, this is what economists called transmission mechanism. Basically like a war in Iran becomes a higher price for atta in Rajasthan. That's globalization dark side. मैं क्या करूँ इसमें? The butterfly effect for poverty. चलो अब now let's talk about gold, because this is where neuroscience meets economics and it's genuinely fascinating. तुम्हें पता है इंडिया imported $72 billion of gold last year, second only to China. तुम ये सोचोगे क्यों क्यों कोई ऐसी कंट्री जिसकी hundreds and millions of lives live below the global middle class, below the line of global middle class, are importing $72 billion of gold, are importing $72 billion of metal which does nothing. कहाँ गोल्ड काम आता है तुम्हारे एज अ डेली लाइफ में? या तो अलमारियों में पड़ा रहता है, या तो तुम्हारे गले में लटका होगा, या तो तुमने पहन रखा होगा. बिकॉज गोल्ड इन इंडियन साइक इज नॉट अ कमोडिटी, इट इज अ कॉग्निटिव एंकर. समझा रहा हूँ. न्यूरोसाइंटिस्ट एंड बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट पीपल लाइक डैनियल कहनेमैन एंड रिचर्ड थाइलर, भाई मेरे को नहीं समझ आया इनका, सॉरी फॉर इफ आई एम मिसप्रोनाउंसिंग, हैव शोन दैट जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, दे आर नॉट जस्ट रैशनल एक्टर्स. बिकॉज जो हम हैं, हम कोई किसी चीज की वैल्यू किसी स्प्रेडशीट या किसी पीस ऑफ पेपर में नहीं रखते. हम उसे रखते हैं इन अ थिंग विच वी कैन सी, विच वी कैन फील, विच इज विजिबल टू अस. बेसिकली गोल्ड कोई स्प्रेडशीट में तो है नहीं, वो तुम्हारे हाथ में है ना, तुम्हें दिख रहा है, दैट्स विजिबल एंड इट कैन बी पास ऑन. अब तुम्हारा गोल्ड है, तुम अपने दहेज में दे सकते हो अपनी, अगर इफ यू हैव अ चाइल्ड, डॉटर बेसिकली, तो वो दहेज में जा सकता है, दहेज में मिल सकता है. तो दैट कैन बी पास ऑन टू. गोल्ड इज व्हाट साइकोलॉजिस्ट कॉल्ड टेंजिबल स्टोर ऑफ ट्रस्ट. अब जिस देश ने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन देखा है, वो जो अंग्रेजों का राज आया था हम पे, करेंसी डीवैल्यूएशन देखी है, देख रहे हो ना, हाईएस्ट पीक पे चल रहा है अभी अपने, और वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस. तो हम अपने बच्चों को बताएंगे ये सारी चीज़ें कि हमारे टाइम पे डॉलर की वैल्यू बहुत बड़ी थी, इतना वीक हो गया था, 95 पहुंचा था, क्या पता 100 छू जाए. बैंक्स फेल होते हुए देखे हैं हमने. एंड जनरेशनल पोवर्टी, वो एक पाकिस्तान से इंडिया आने में क्या सीन हो गया भाई, पूरा देश गरीब हो गया. और वो पहले और अलग लूट के ले गए थे हमें, तो पहले तो गरीब थे ही, अभी ये पार्टीशन बना दी, उससे और गरीब हो गए. बट अगर तुमने नोटिस करो, गोल्ड एक ऐसी चीज है दैट इज नेवर गॉन टू जीरो, उसकी वैल्यू कभी जीरो हुई नहीं. कितने सदियों से चलता आ रहा था. जैसे हमारे देश को सोने की चिड़िया बोलते थे, तब भी गोल्ड वॉज एट पीक. फिर जब वो पार्टीशन हुई, तब भी गोल्ड वॉज एट पीक. जो रिजर्व्स रखते हैं किसी बैंक से अगर लोन लेना है, सो यू पुट गोल्ड एज एन एसेट एंड देन यू टेक मनी. तो तब भी गोल्ड की वैल्यू थी. पहले के टाइम पे जब थोड़ा बार्टर सिस्टम के बाद जो सिस्टम आया था कि लाइक वी कैन पे, तो गोल्ड कॉइन्स चले थे, तब भी उसकी वैल्यू थी. तो तुम्हारे दादा थे, दे ही डिडंट ट्रस्टेड बैंक एज मच एज ही ट्रस्टेड हिज
मंगलसूत्र. एंड here's beautiful tragic irony. The very behavior which protect individual Indian families hoarding gold is the behavior that collectively weakens the Indian nation. This is what economists call a collective action problem, or most famously the tragedy of commons. So जब तुमने ये सुना था कि जब मोदी जी ने बोला था stop buying gold, ये हटाऊंगा नहीं एडिटिंग से. And it's fucking 136. मेरा देश आई थिंक अगर तूने सुना हो तो भाई यू गेट माई पॉइंट. आई वोंट एक्सप्लेन फर्दर. सो हाँ, व्हेन मोदी जी सेड स्टॉप बाइंग गोल्ड, वो कोई इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट नहीं बोल रहे थे, वो एक फिलोसफिकल वाली बोल रहे थे. ही इज आस्किंग यू टू ओवरराइड योर इंडिविजुअल एवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग फॉर कलेक्टिव सर्वाइवल. दैट इज जेन्युइनली एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आस्क. अब मोदी जी ने तो ये भी बोला था वर्क फ्रॉम होम, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कारपूल. आई नो व्हाट यू ऑल आर थिंक कि भाई यहाँ पे आधी जनता के पास डेस्क जॉब है नहीं, बट फिर आई गेट योर पॉइंट. बट लेट मी टेल यू व्हाट इट इज रियली अबाउट. मैं बताया था ना, इंडिया का इंपोर्ट बिल 123 बिलियन डॉलर्स आया था लास्ट ईयर. अब every liter of petrol you save, it is a fraction of dollar that stays in India's reserve. वो इस देश के रिजर्व में ही मिलेगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सऊदी, किसी सऊदी की ऑयल कंपनी और अ रशियन पाइपलाइन और एन अमेरिकन फ्यूचर मार्केट. इट्स समथिंग काउंटर इंट्यूटिव फ्रॉम बिहेवियरल इकोनॉमिक्स. Small individual actions aggregated across a billion people move macroeconomic numbers. कोविड का एग्जांपल ले लेते. जब लॉकडाउन हुआ था, सब घर में थे अपने, nobody was using public transport, सब घर में बैठे हुए हैं. जो फ्यूल कंजम्पशन थी that dropped drastically. that time इंडिया का जो इम्पोर्ट बिल था ना, दैट फेल. वो किसी गवर्नमेंट की डूइंग नहीं थी कि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था. वो बिलियन जो लोग थे ना, दे वर टुगेदर नॉट ड्राइविंग. सो जो मोदी जी है ना, दैट ही इज जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट रिक्रिएट दैट एग्रीगेट इफेक्ट, बट नाउ बोलकर बिना किसी लॉकडाउन के. और यहाँ मैं कोई किसी पार्टी सपोर्टर नहीं हूँ, जस्ट सेइंग. कहीं तुम्हें सोचो मैं किसी एक पार्टी का सपोर्टर हूँ, मैं जस्ट कुछ भी जो होता है मैं उसको बस एक नॉर्मल भाषा में समझा रहा हूँ. कहीं तुम्हें मेरे को मैं बीजेपी का हूँ या कांग्रेस का हूँ या आपको किसी का नहीं हूँ मैं. आई एम ऑलवेज द नन ऑफ द अबव नोटा गाय. अनटिल कुछ क्रेजी सरकार मैं बना दूं या आ जाए, या तुम में से कोई बना दो, आई विल सपोर्ट इफ यू आर डूइंग गुड और ग्रेट. अब वो वर्क करे ना करे, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट लॉजिक तो है ना. बट हियर इज व्हाट आई वांट यू टू सिट विद द रियल लेसन ऑफ दिस मोमेंट. वी लिव इन एन era of hyper globalized fragility. So the philosopher, if you know और नॉट नो, नासिम निकोलस तालिब, जिन्होंने ब्लैक स्वान और एंटी फ्रेजाइल लिखी है, ही वार्नड अस अबाउट दिस. व्हेन systems are too interconnected, a shock anywhere becomes a shock everywhere. There is no insulation, there is no immunity. क्या बात बोली है. there a shock anywhere is a shock everywhere. Wow. A war between America, Israel, and Iran, three countries India has no war with, is forcing Indian government to ask its citizens to stop buying gold in their wedding traditions. Think about that. अब कोई चेन्नई में बैठी हुई कोई दुल्हन है, अब वो गोल्ड पहन रही है. That is connected to a missile in Tehran. That's not a metaphor, that's a supply chain economics. And this is the uncomfortable truth that Modi ji's speech forces us to confront. India's sovereignty, its economic independence, is incomplete as long as India imports $123 billion of oil and $72 billion of gold every year. It remains structurally a nation that is one global crisis away from weakness. So यही रीजन है जो इकोनॉमिस्ट एंड स्ट्रेटेजिस्ट थे, जो इतना आर्ग्यू कर रहे थे फॉर डेकेड्स, दैट इंडिया का जो रियल लॉन्ग टर्म प्लान ये होना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी टू ब्रेक दैट ऑयल इंपोर्ट्स, डोमेस्टिक गोल्ड रिसाइकलिंग एंड गोल्ड बॉन्ड एडॉप्शन टू सेटिस्फाई द कल्चरली नीड्स विदाउट bleeding forex, diversified trade, so no single choke point can strangle the economy. जो मोदी जी की स्पीच थी, that was just a band-aid. It might help, but जो सर्जरी, that's a structural reform. It is a work of generation. भाई ऐसे थोड़ी हो जाएगा until गवर्नमेंट ही कुछ कर दे, वो लॉकडाउन जैसी कोई शिट कर दे, घर बैठो. तो अब अगली बार तुमसे कोई पूछे ना कि मोदी जी ने क्यों बोला था गोल्ड नहीं खरीदना, अब उसको तुम एज ए पॉलिटिकली वे में आंसर मत करना. उनसे तुम ये पूछ लेना, जस्ट
Answer them with a question. Do you know what a current account deficit is? Do you know what the Strait of Hormuz is? Do you know what the tragedy of the common means? Because the moment you understand those things, जो तुम्हारे दिमाग में जो political noise है ना, that will disappear and you will start to see the actual shape of the world. हाँ, अगर उसने मेरी वीडियो देख रही होगी तो वो तुम्हें आंसर भी कर देगा, ये देख के रहना. Because I am, मैं हो रहा हूँ थोड़ा वायरल हो रहा हूँ. For me 58 subs is a lot and getting 200 plus views. It means I'm doing something good. And now thank you. But if this video made you think differently about something you thought you already understood, that's the whole point of the channel. So yeah, thank you all for watching. And yeah, you know how much I care about you all, and I always and will be try to be someone who you can look up to.